वज़ीर-ए-आला KCR की क़यादत में तेलंगाना काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। प्रगति भवन में मुनक्किदा इजलास में कई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के आगाज़ के साथ ही कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला ने टीकाकारी में तेज़ी लाने का ओहदेदारों को हुक्म दिया। साथ ही रियासत में मंजूर किए गए 7 मेडिकल कॉलेजों के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला ने आइंदा तालीमी साल से नए मेडिकल कॉलेजों में दर्स व तदरीस शुरू करने का हुक्म जारी किया। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 621 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 1,13,000 से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 621 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल एक ही दिन में कोरोना से रियासत भर में 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। रियासत भर में 9,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 80 केस दर्ज हुए। करीमनगर में 67, वरंगल में 54 केस दर्ज हुए, जबकि जोगोलंबा गदवाल में कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। To win 2 consecutive Olympic medals, no doubt it's a bronze and a silver, but continuously. So that's a record. So that way at least she has brought some name and fame to the country. ఇవాళ గేమ్ గురించి ఏం చెప్తారు? ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ అటాకింగ్. So what did you speak to her? ఈ రోజు గేమ్ చేంజ్. What did you speak to her and what she said? What happened? Yesterday I told you have given your best, no problem, but concentrate today and just think that you are giving me a gift and on the court. So I'm very happy. Was her morale down yesterday after No, the no. match? Morale in the sense, of course, everybody will cry. She had tears in her eyes, but good that she has recovered and come back and she won today. రైట్. వరల్డ్ నెంబర్ 1 తోటి ఓడిపోయిన తర్వాత నిజంగానే మళ్ళీ కమ్బ్యాక్ అవడం అనేది చాలా కష్టమైన పని. అవును. బట్ ఈ రోజు అపోనెంట్ ని చూసుకుంటే ఆమె బెటర్ రికార్డ్ ఉంది సింధు మీద. అవును. దో దట్ షీ హాస్ మోర్ విన్స్. బట్ ఇవాల్టి గేమ్ వెళ్ళేటప్పుడు వాట్ వాస్ హర్ మైండ్ సెట్? అంటే వెళ్ళేటప్పుడు నేను ఒకటే చెప్పాను, చాలా ఫోకస్గా బాడీ లాంగ్వేజ్ బాగా పెట్టుకుని వెళ్ళాలి తల్లి. ఎందుకంటే దట్ విల్ బికాస్ ఐ టోల్డ్ హర్ దట్ ఎస్టర్డే అండ్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే హీ బింగ్జావ్ హ్యాస్ ప్లేడ్ 3 games. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ ఫర్ ఎ ప్లేయర్ టు కంటిన్యూ అగైన్ ద సేమ్ రిథమ్. ప్లస్ నేను పేస్ కూడా పెంచమన్నా, ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ increase the pace, He Bingjiao is also a tricky player like Taizu. So that's how she lost in Indian Super Series. Though she was leading 2016, she lost 23-21 and 21-18. So keeping that in mind, I have sent a video also of He Bingjiao she played in. And of course, coach and even Sindhu was also analyzed in the morning, and I'm very happy today. వరల్డ్ నెంబర్ 1 అయినప్పుడు ఆవిడ చెప్తూ సింధు ఎక్కడైతే ఫ్లాస్ ఉన్నాయో అవి క్లీన్ గా గమనించి ఆడారు అనే ఒక స్ట్రాటజీ తోటి వాళ్ళు వచ్చారని చెప్పారు. బట్ ఈ రోజు మీరు చెప్పినట్టుగా నిన్న 3 గేమ్లు ఆడిన తర్వాత ఈ రోజు ఆడడం అంత ఈజీ కాదు. బట్ హౌ డస్ షీ లుక్ ఇన్ ద కోర్ట్ సార్ ఓవరాల్? Did she Overall- adopt a different strategy while playing? దట్స్ No, overall she was very aggressive on court, and I told her just keep attacking, especially towards her back, because when Hibbing plays first stroke, he plays at the forehand, immediately she leaves that place and covers the other 3 places. So now what I said is keep playing repeated strokes. Then while watching, because I had a physio there on phone, then I was messaging her that now the inward shots are more successful for Sindhu. After 1-2 rallies, then she can go for the inward attack. Yeah, especially a 17th point rally, Yeah. the way she's smashed. Yeah. And So she couldn't reply. So you might have watched. Yes, sir. People who have watched. So she has more attacked on inward, especially towards her backside. That too smashes. She was successful, and we could get the game. As a father, obviously it's a proud moment for every Indian. But as a father, how excited are you to welcome her now, sir? So of course I told her I'll come to Delhi. So I think she is coming to Delhi on 3rd. Let me speak to the officials, by officials, and I am planning to go to Delhi because this is Olympics is not a small event where you get a medal, whether it is a gold or silver or a bronze. A medal is a medal, and I am happy the way she has worked, and God has given all the happiness. Any special request from her? She's worked very hard to achieve this. Anything that she
No, Sindhu is not such a girl. She will not request. So now see, we have to make her happy. So still a long way to go, and I am confident that she will play another next Olympics also. రమణ గారు ఒక ప్లేయర్ ఒక ఒలింపిక్స్ ఆడటమే ఇట్స్ డ్రీమ్. మీరు చెప్పినట్టుగా మీ మాటలోనే 2 ఒలింపిక్స్, అది కూడా 2 మెడల్స్ తెచ్చారు. సో వాట్ ఆర్ యు లుకింగ్ ఫర్? So now we have to plan. We have to work. We have to get as many medals as we can to the country at the Olympics, at the highest level of. Because why I trust Sindhu is she is focused and she has that hunger, to go and play, and she enjoys the game. So that's the reason. Sir, and answer. हाँ अम्मा नहीं आप पूछिए तो. हाँ बिल्कुल. तो सिंधु ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, कैसा लगा? नो डाउट हमें थोड़ा नाराज़ होना पड़ा कि हम गोल्ड मेडल एक्सपेक्ट कर रहे थे. हर आदमी यही सोचता है, लेकिन बोलने में बहुत आसान है गोल्ड मेडल लाना मतलब, लेकिन वहाँ तक पहुँचना और सेमीफाइनल में ठीक है हार गई, लेकिन ब्रॉन्ज भी लाई है. तो जब भी सिंधु गई देश के लिए कुछ लाई है. तो मैं इस तरह मानता हूँ, पहले गई तो लाई है, अभी गई तो लाई है देश के लिए मेडल. तो मैं बहुत खुशी हूँ. सर आपने ऐसा कौन सा मंत्र दिया था कल, क्योंकि कल के मैच के बाद ऑब्वियस है कि वो काफी निराश हुई होगी, तो क्या बातचीत हुई थी आपकी? हाँ, हर प्लेयर तो निराश तो होता है. मैंने बोला कि बेटा हो गया, आपने तो अच्छा खेला है, ये बस होगा ऐसा. सो इसीलिए वो छोड़ दीजिए, जो रात गई तो बात गई, ऐसा करके आप छोड़ दीजिए. अभी इस गेम को कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि अगर आप जीतेंगे तो एक रिकॉर्ड होगा. ओलंपिक्स में पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मेडल मिला है. चीन के खिलाड़ी को हराया है पीवी सिंधु ने. तो हिंदुस्तान को ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है पीवी सिंधु की शक्ल में. इनके वालिद मीडिया से बात कर रहे थे. उन्हें उम्मीद थी कि वो गोल्ड मेडल की उम्मीद लगाए बैठे थे. थोड़ा सा उन्हें अफसोस है, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर उन्होंने खुशी का इजहार किया है. सिंधु ने हिंदुस्तान को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है. सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर तमाम स्पोर्ट्स के मिनिस्टर्स ने और खिलाड़ियों ने उन्हें मुबारकबाद दी है. और आगे बढ़ेंगे. हैदराबाद ज़माने कदीम से गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ रहा है. आज पुराने शहर में बोनाल त्यौहार जोशो खरूश से मनाया गया. बोनाल त्यौहार के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं. हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने पुराने शहर में वाक़ एकन्ना मादन्ना टेम्पल में हाजिरी दी. उन्होंने शहर की आवाम को बोनाल त्यौहार की मुबारकबाद दी. अंजनी कुमार ने बताया कि बोनाल के पेश नज़र पुराने शहर में इजाफी सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया है. సిటీ పోలీస్లో మన ఎంటైర్ టీమ్ ప్రస్తుతం డీసీపీ సౌత్ జోన్ హజరావ్ భూపాల్ గారు నేతృత్వంలో చాలా మంచి బందోబస్తు అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నారు. మీ అందరికీ తెలుసు, లాస్ట్ 1.5 ఇయర్లో ఈ కరోనా టైంలో మన సిటీ పోలీస్ ఒక ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్ లాగే ప్రతి స్ట్రీట్లో, ప్రతి కాలనీలో పబ్లిక్ సేవ, పబ్లిక్ సేఫ్టీ గురించి పనిచేస్తున్నారు. ఈ అన్ని రిలీజియస్ ఫెస్టివల్లో నేను సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, తప్పకుండా మాస్క్ యూజ్ చేయండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. అండ్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి అక్కన్న మదన టెంపుల్ ఆర్గనైజేషన్ కమిటీ నేను అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. ఎంత మంచి అరేంజ్మెంట్ ఎవ్రీ టైం చేస్తున్నారు. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी ने बोनाल त्यौहार के पेश नज़र पुराने शहर की एकन्ना मादन्ना टेम्पल में हाजिरी दी. बोनाल के मौके पर उन्होंने खुसूसी पूजा की. रेवंत रेड्डी ने कहा कि निज़ाम दौर हुकूमत में बोनाल त्यौहार का आगाज़ हुआ है. हैदराबाद ज़माने कदीम से ही गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है. रेवंत रेड्डी ने आवाम को बोनाल त्यौहार की मुबारकबाद दी. నిజాం పాలనలో కలరా వచ్చినప్పుడు, ప్రజలు కష్టాలలో ఉన్నప్పుడు నిజాం నవాబ్ గారే అమ్మగారికి బంగారు ముక్కు పుడక చేయించి దండం పెట్టుకోవడంతోనే అమ్మవారి ఆశీర్వాదంతో 100 సంవత్సరాల క్రితం కలరాన్ని ఎదుర్కొని ఈ పట్టణ ప్రజలు, ఈ ప్రాంత ప్రజలు బతికిండ్రు. ప్రపంచానికి హైదరాబాద్ అంటే సర్వమత సమ్మేళనం,
మనమందరం సంవయనంతో కలిసిమెలిసి ఉంటామని చెప్పి ప్రపంచానికి సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిన సందర్భం. ఈ సందర్భంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన భక్తులందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అమ్మవారికి మరొక్కసారి మనందరం దండం పెట్టుకొని 112 సంవత్సరాల క్రితం వరదలు వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్ మునుగుతుంటే तलाक़ सलासा को जुर्म करार दिए जाने वाले दिन आज यानी 1 अगस्त को यौम हुकूक़ मुस्लिम ख़वातीन के तौर पर मनाया जा रहा है। मरकज़ी वज़ारत बराए अक़लियती उमूर की जानिब से प्रोग्राम का इनेक़ाद किया गया। प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी और मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नक़वी ने मुस्लिम ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात को गिनवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 3 तलाक़ को कानूनी जुर्म बनाने के बाद 3 तलाक़ के वाक़यात मुल्क भर में बड़े पैमाने पर कम हुए हैं और मुल्क भर की मुस्लिम ख़वातीन ने इसका इस्तक़बाल किया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुस्लिम ख़वातीन की खुद इन्हिसारी, खुद एतमादी और इज़्ज़त नफ्स को मजबूत बनाते हुए उनके आइनी, बुनियादी और जमहूरी मसावी हुकूक़ को यकीनी बनाया है। मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने इस मौके पर खिताब किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो समावेशी विकास है, वो समावेशी विकास समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हुए लोगों के विकास के लिए है। और जिस वक्त ट्रिपल तलाक कानून आया था तो कोई अचानक नहीं आया था। तलाक़ सलासा को कानूनी जुर्म करार देने के 2 साल मुकम्मल होने पर आज मुल्क भर में यौम हुकूक़ मुस्लिम ख़वातीन मनाया जा रहा है। यौम हुकूक़ मुस्लिम ख़वातीन के मौके पर इमाम सदर असद अवैसी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत मुस्लिम ख़वातीन को धोखा दे रही है। सबसे ज़्यादा अनपढ़ मुस्लिम ख़वातीन हैं, उनको तालीम याफ्ता बनाने पर कोई बात नहीं की जाती। असद अवैसी ने कहा कि तलाक़ सलासा के कानून से ख़वातीन को इंसाफ नहीं मिलेगा बल्कि सिर्फ उनका इस्तेहसाल होगा। की तादाद में मुस्लिम महिलाएं ने CAA का कानून के ख़िलाफ़, NRC, NPR के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। आज भारत में सबसे ज़्यादा अगर इलिटरेट है फीमेल्स में तो मुस्लिम महिला हैं, उसके लिए मोदी सरकार ने क्या किया। सबसे ज़्यादा अगर ड्रॉप आउट होता है तो मुसलमानों का और उसमें मुस्लिम महिलाओं का। तो क्या आपने ये क़ानून बनाकर एक धोखा दिया है? ये क़ानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया है। ये इक्वालिटी के ख़िलाफ़ है, ये मुस्लिम लोगों को डिमोनाइज करने के लिए क़ानून बनाया गया। और हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम वुमेन डे मनाएंगे, दूसरे कम्युनिटी का नहीं मनाएंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी हिंदू बहनें, हमारी दलित बहनें, हमारी OBC बहनें, सबका एम्पावरमेंट हो चुका है। हैदराबाद के इलाके महमूद नगर, हसन नगर में वाक़े मदरसे हबीबिया इस्लामिक मॉडर्न She'll be busy, she has to take the blessings of పుట్టినిల్లు ఇక్కడ సీఎం గారు కేసీఆర్ గారిది, అక్కడ మెటీరియల్ అనుకోండి। जब हुआ है उसके साथ साथ बेटियों को जिस भी क्षेत्र में अवसर मिला, किसी भी क्षेत्र में, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर शानदार किया, चाहे वो भारतीय सेना हो, देश के अन्य क्षेत्र हों, सामाजिक क्षेत्र हों, और खेलों में भी बेटियों ने बाकियों से बेहतर ही किया है। ये अपने आप में प्रेरणादायक है। और मुझे लगता है ये बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, ये अपने आप में मुहिम बहुत ज़बरदस्त चली है। और बहुत सारी बेटियों के साथ साथ युवा पीढ़ी को एक बड़ी प्रेरणा PV सिंधु हो, मीराबाई चानू हो, लवलीना हो, इन सब ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों की ओर से मिलती हैं। वज़ीर खेल अनुराग ठाकुर भी मुबारकबाद दे रहे थे PV सिंधु को ब्राउन्ज मेडल जीतने पर। आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद के इलाके महमूद नगर, हसन नगर में वाक़ मदरसे हबीबिया इस्लामिक मॉडर्न एजुकेशन में जलसे अज़मत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इनक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना सैयद शाह मुबशर पाशा कादरी, बानी जामिया क़मरुल हुदा, हाफ़िज़ सैयद शाह तक़ियुल्लाह बुखारी, सदर मदरसे हबीबिया इस्लामिक मॉडर्न एजुकेशन और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा जामिया निज़ामिया के रुकन सैयद शाह तौफ़ीक़ुल्लाह बुखारी ने जलसे से खिताब करते हुए अज़मत उस्मान गनी पर तफसीली रोशनी डाली। ये पैगाम दिया गया कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान की फ़जीलत के हवाले से इरशाद फरमाया कि जन्नत में हर नबी के लिए एक रफ़ीक है और जन्नत में मेरे रफ़ीक उस्मान बिन अफ़्फ़ान है। और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह रब्बे करीम क़यामत के दिन ये आपकी शान ज़ाहिर फरमाएगा। आपकी शफ़ाअत से 70,000 ऐसे अफराद जन्नत में दाखिल होंगे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। Speak about the game. I will not. What special request once Sindhu comes back? We know she's going to have ice cream with Prime Minister Modi, as she said. What We'll prepare biryani. Definitely, she likes very much. What a historic day. Congratulations to you. Historic day. Praveen, special celebrity Suchitra Academy. और बढ़ेंगे नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यह यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह की है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फ़ोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुताल्लिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977